Hello, students. Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Hope your Sunday went well. And so today is a nice evening. And then this evening, I thought of taking an important class about your hand washing and hand hygiene because it is a very important and a basic topic. Most of us have heard about this hand washing steps would be like this, would be like that, but very some of us knows the exact topic or exact steps of your hand washing. Okay, so just a Sunday evening, just in a nutshell, we'll study all those important factors. We'll wrap up all the important things related to your hand hygiene and what is required, what kinds of hand hygiene movements is required, and everything about your hand washing and its steps. Okay, so I, Prajuti Panigrahi, okay, gonna take an important class about your hand hygiene. Okay. Before starting, I would like to say that life is beautiful. Enjoy it to your fullest. Okay, and most of all, most of the I would like to say that जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. Okay, so let's start. Okay, so as per the screen, you can see a few. These are the steps of your hand washing. Okay, so step by step, we need to know what are the steps of your hand washing from starting to last, because many of us know the steps of hand washing, but when it is been asked or when it is asked to implement it, then at that time, by mistake or by default, we skip any steps, or by mistake we unknowingly we either alternate their steps. Okay, so today we will study in such a manner that it will be clear for you all that what are the actual steps of hand washing, as it is very very important in your clinical life, as well as many of the nurses, they face like this. Okay, first of all, means any external if they come to us, okay, well, tell me the steps of hand washing. कोई भी एक्सटर्नल आता है, सबसे पहला क्वेश्चन कोई बेसिक सा क्वेश्चन उठाती है कि कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग में. तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 है कि 8 है कि 10 है. कोई कहता है 7 स्टेप्स है, कोई कहता है 8 स्टेप्स है, कोई कहता है 10 स्टेप्स है. वी डोंट नो कितने स्टेप्स है हैंड वॉशिंग में. सो मच कंफ्यूजिंग, राइट? और फिर पहले इंटरलेसिंग आता है कि पहले इंटरलॉकिंग आता है. यस, वी गेट कंफ्यूज, राइट? सो टुडे वी विल स्टडी इन सच अ वे कि आपको याद रह जाएगा. ओके, तो सी today's our topic is hand hygiene and everything about it. Okay, तो सी सबसे पहले मान लीजिए कि हम हैंड वॉशिंग करने जा रहे हैं. कोई भी हमने प्रोसीजर किया हुआ है, उसके बाद हम हैंड वॉशिंग करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यू हैव टू टेक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ योर आइदर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, या फिर कोई भी अगर स्टेरिलियम है, कोई भी हैंड वॉश है, जस्ट एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हैंड वॉशिंग एज यू टेक. मतलब ठीक है, मान लीजिए कि ठीक है, ये इट्स अ हैंड वॉशिंग बॉटल. यस, ओके, एंड हम इसमें से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, फर्स्ट स्टेप हमारे ये है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पम्प से वी आर टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू योर पम्प. Okay, so first step is take an adequate amount of solution into your palm. Yes, after that what you have to do? Wash. And one more thing is that before doing this, आपको उससे पहले क्या कर लेना है कि पहले आपके हाथों को अच्छे से आपको वेट कर लेना है, अदरवाइज वो पकड़ेगा नहीं. यस, तो सबसे पहले आपको आपके हैंड्स को एंड योर palms, both the dorsum and the palm, you have to wet it properly under a टैप ऑफ वाटर. यस, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? बिफोर एडिंग द सोल्यूशन इनटू योर पाम, सबसे पहले हाथ को वेट कर लीजिए. ठीक है, वेट योर हैंड्स एंड पाम्स प्रॉपरली. आफ्टर दैट टेक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ योर सोप सोल्यूशन और योर हैंड वॉश और इन लिक्विड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इनटू योर पाम. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, most important step is friction. Okay, in your hand washing, the most important thing that helps in cleansing all your microorganisms, all your pathogens, that is your friction of your hands. So first of all, rub your hands palm to palm. Okay, yes, clear? So first step क्या था? सबसे पहला step हमने क्या किया? Wet your hands properly under the running water or the tap water. Yes, वेट कर लिया. फिर सेकेंड स्टेप क्या है? टेक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इनटू योर हैंड, एंड देन द थर्ड स्टेप इज फॉलोड बाय, दैट इज palm to palm. Rub your hands palm to palm. Clear? Yes. आफ्टर दैट जब ये हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो है, ये तो बाकी इसको तो किया ही नहीं है. ठीक है, तो हमने इसको करने के बाद देन राइट हैंड ओवर द लेफ्ट डॉर्सम, राइट हैंड ओवर द लेफ्ट डॉर्सम.
This is your left dorsum. Okay, this is your left dorsum. Right hand over the left dorsum, then left hand over the right dorsum. Am I clear? देखो, ठीक है? So wet your hands. Take an adequate amount of soap solution. Yes. Then rubbing palm to palm. Yes. Then right hand over the left dorsum. Left hand over the right dorsum. Clear? हो गया? ठीक है? ये तो हो गया. इसके अंदर के जो है ये जो गैप्स है इसको कौन भरेगा? ठीक है, ये तो कर लिया, ये कर लिया, ये कहाँ जाएंगे? यस, तो इसे करना है कैसे? इंटरलेसिंग. ओके, इंटरलेसिंग, LACING, इंटरलेसिंग. ठीक है, तो कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे करेंगे. यस, फिर ऐसे ऐसे करेंगे. क्लियर? दिस इज योर इंटरलेसिंग. क्लियर? ऐसे ऐसे करेंगे. दिस इज योर इंटरलेसिंग. देन लाइक दिस. Here you have to interlace your fingers like this. Just see as I am showing. Okay. तो पहला स्टेप क्या था? Wet your hands. Take an adequate amount of soap solution or your hand wash or your antiseptic solution. Then फिर हम क्या करेंगे? Then you have to rub your hands palm to palm. फिर right hand over the left dorsum, left hand over the right dorsum. Clear? फिर ये बच गया interlacing. Then आ गया next step आपका इंटरलेसिंग. यस, अच्छा, इंटरलेसिंग क्या? ये टिप्स तो रह गए. ये इसको कैसे करेंगे? ये वाले जो पार्ट से ठीक से हुए ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरलॉकिंग. ठीक है, यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स लाइक दिस सो दैट आपकी जो डिजिट्स की जो लाइंस है, ठीक है, ये प्रॉपरली क्लीन हो जाए. एम आई क्लियर? ये जो आपके जो लाइंस है ये प्रॉपरली क्लीन हो जाए. ठीक है, तो कितने स्टेप्स है हमारे? फर्स्ट स्टेप इज योर वेट योर हैंड्स. सेकेंड स्टेप इज योर टेक एन adequate amount of soap solution or your antiseptic wash. Third is your rub your hands palm to palm. Fourth one is your right hand over the left dorsum, then left hand over the right dorsum. That's your fourth step. Fifth step क्या आ गया? ये वाले जो पार्ट्स है आपके, ये जो ओके ये जो भी आपके पार्ट्स है, ये जो इंटर डिजिट्स वाले जो स्पेसेस है यहाँ पे, दिस इज द फिफ्थ स्टेप, दैट इज योर इंटरलेसिंग. ओके, देन व्हाट इज द सिक्स्थ स्टेप? जो आपकी ये लाइनिंग्स है इसको क्लीन करना है. ठीक है, सो लाइक दिस. ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरलॉकिंग. हमने लॉक कर लिया है. क्लियर? हमने इसको लॉक कर लिया है. दैट इज द सिक्स्थ स्टेप इज योर इंटरलॉकिंग प्रॉपरली. Okay, then comes the seventh step. Seventh step, that is your this one. सारी फिंगर्स हो गए. इसको कौन करेगा? अंगूठा दिखा देंगे क्या? नहीं ना. तो क्या करेंगे? इसको तो अंगूठा को तो करना पड़ेगा ना, राइट? तो थम्स को क्लीन करना है ऐसे. ओके, थम रोटेशन. क्लियर? दिस इज योर सेवेंथ स्टेप, दैट इज योर थम रोटेशन. क्लियर? सब में फ्रिक्शन होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन clear? Seventh step is your thumb rotation. Yes, then again next step is your, okay, we have to clean this part. Okay, this is your palm. Okay, this is your palm. Then you have to do in a rotation wise, you have to circular motion, you have to clean your palms. Okay, that is the seventh step. Yes, ये हो गया आपका seventh step हो गया. ठीक है, क्लियर? इसको कर लिया. ठीक है, देन आपको इसको कर लेने के बाद, ओके, इन द सेंटर ऑफ योर पाम्स योर फिंगर को प्रॉपरली, जो फिंगर टिप्स है, ये जो आपकी जो फिंगर टिप्स है, ये प्रॉपरली इसको रोटेशन करना है. फिंगर टिप्स रोटेशन. ओके, देन आफ्टर दैट कम्स योर रिस्ट पार्ट. ओके, यस, द रिस्ट पार्ट, that is the eighth portion. Okay, eighth step is your wrist part. Clean it properly. Yes, फिर you have to with your elbow, अगर आपने इसको भी हाथ को मतलब आपने जस्ट क्लींस किया है, आप वो जो टैप ऑफ रनिंग वाटर का वो तो बंद कर दिया था, तो आप उसको ऐसे एल्बो से ऐसे ओपन करेंगे. ठीक है, ऐसे एज एन ओपन करेंगे. क्लियर? देन इन द अंडर रनिंग वाटर, मान लीजिए पानी आ रहा है, उसके अंदर आपको ऐसे अंडर द रनिंग वाटर यू हैव टू प्रॉपरली वॉश योर hands. Clear? Properly you have to wash your hands. That is your ninth step. फिर क्या करना? Eighth step क्या था? Eighth step is your, okay, cleansing your wrist. Okay. Then ninth step is your under running tap to clean it properly. Then
After that, take a wet, take a means a sterile towel is there or sterile washing sheets are there. Okay, dry your hands properly. That is the 10th step. Okay, so basically, listen, black guidelines say there are 10 steps of hand washing. First one is that is wet your hands, take an adequate amount of soap solution, rub palm to palm, then right palm over the left dorsum, left palm over the right dorsum, yes, then interlacing of the fingers, yes, interlacing of the fingers. देखो interlacing और interlocking में confuse होते हो ना आप कि सबसे पहले क्या आएगा, पहले interlacing क्यों आता है, interlacing LACING, see, सुनो ना टिके, पासवर्ड कौन आईपैड रो बोल दी गला पे Recording जी उस रिपोर्ट कर तू साइलेंट तो ले तो the motive of start of to the ball से मुश्किल ओके, सो दैट इज योर, आपको इंटरलेसिंग और इंटरलॉकिंग में डिफरेंस अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले क्या आएगा, लेसिंग आगे कि इंटरलॉकिंग आएगा, यस, तो देखो इंटरलेसिंग का क्या स्पेलिंग है, कभी देखो सोचो, ये देखो INTERLACING, ये है इंटरलेसिंग, ठीक है। फिर आपका आका ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर इंटरलेसिंग और ये मैंने लिख दिया इधर इंटरलॉकिंग। एक चीज़ देखो, एक चीज़ मेरे को बताओ, ए पहले आता है कि ओ पहले आता है, ए पहले आता है कि ओ पहले आता है, ए फॉर एप्पल ओ फॉर ऑरेंज, सबसे पहले कौन सा आता है, ए आता है, तो ए जो इंटरलेसिंग है वो पहले रहेगा, इंटरलेसिंग ए पहले रहेगा, इंटरलॉकिंग ओ बाद में रहेगा क्योंकि ए के बाद ओ आता है, क्लियर। तो आप फर्स्ट इंटरलेसिंग देन इज योर इंटरलॉकिंग, यस, फिर थंब रोटेशन, यस, देन फिंगर टिप्स, यस, ओके, देन clean your wrists, yes, under the tap water, wash it properly, yes, then dry your hands using a sterile towel or a sterile wash sheet. Okay, so these are your basic 10 steps of hand washing, no 7 steps, no 8 steps, 10 steps of hand washing are there. Okay, I hope it is clear for you all. Okay, then an important thing is ये तो हमने हैंड वॉशिंग सीख लिया, लेकिन आपको कब कब हैंड वॉशिंग करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना, एज अ नर्स यू शुड नो कितने कब करना है, क्या सोते जागते कभी भी करेंगे नहीं, मान लीजिए आपने भी पेशेंट केयर दिया है, ठीक है, उसके बाद करना है, फिर कब कब करना है, कब करना है, सो बेसिकली देर आर 5 मूवमेंट्स, ओके, देर आर 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है, 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड, इसको आपको फॉलो करना है, क्लियर। एक चीज आप देखो, मैं बता रही हूँ आपको, पहला सबसे पहला है, कैन यू सी द इमेज, सबसे पहला है बिफोर टचिंग द पेशेंट, ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज योर बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले आपको प्रॉपरली हैंड वॉश करना है, जैसे ही मैंने कहा था ऑल द 10 स्टेप से आपको वॉश कर लेना है, यस। देन आपको नेक्स्ट हैंड हाइजीन कब करना है, बिफोर एनी क्लीन और स्टेराइल प्रोसीजर, अगर आप कोई एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हो, मतलब आप कोई अगर बेसिकली अगर कोई एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हो, कोई स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हो, कोई क्लीन प्रोसीजर कर रहे हो, उससे पहले भी आपको प्रॉपरली अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एनी स्टेराइल और एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, यस। थर्ड हो गया, आपने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, तो आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट का काम खत्म कर दिया, तो पेशेंट को छू लेने के बाद, पेशेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर टचिंग द पेशेंट,
पेशेंट को टच करने के बाद. यस. आफ्टर दैट अगर मान लीजिए अगर आपको फिर अगर कोई अगर बॉडी फ्लूइड्स लग गया है अगर आपके हाथ में, मतलब मान लीजिए आपने प्रोस्टेट किया है, ठीक है, और अगर वाइल ड्यूरिंग द प्रोस्टेट मान लीजिए आप कोई कोलोस्टोम इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है, यस, कोलोस्टोम इरिगेशन कर रहे हो, तो उस वक्त क्या हो गया, कोई भी अगर फ्लूइड अगर आपके हाथ में लग गया है, ठीक है, तो उस वक्त उसके बाद भी आपको हैंड वॉशिंग करना है. यस. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर आफ्टर टचिंग द पेशेंट एनवायरनमेंट. पेशेंट का सारा काम खत्म कर दिया आपने, पेशेंट का जो बेड एरिया है उसको मतलब कंप्लीटली आपका काम खत्म हो गया, अब यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेशेंट, तो आपको तब भी एक ठो हैंड वॉश करना है. तो 5 मोमेंट्स है. सबसे पहला है बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले, ठीक है. फिर दूसरा आ गया कोई भी स्टेराइल या फिर एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले, बिफोर. थर्ड आ गया अगर कोई बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन, ब्लड, स्पूटम, स्पेसिमेन कुछ भी अगर आपके हाथ में लग जाता है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर अगर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद करना है. फोर्थ स्टेप क्या है, पेशेंट को छू प्रोसीजर कर लिया, लग गया, हैंड वॉश कर लिया, ठीक है, फिर पेशेंट को टच कर लेने के बाद, पेशेंट का काम खत्म होने के बाद, आफ्टर टचिंग द पेशेंट. यस. फिर आ गया लास्ट वन, दैट इज नॉट द लीस्ट, दैट इज आफ्टर टचिंग, आफ्टर मीन्स रिमूविंग फ्रॉम द पेशेंट्स एनवायरमेंट. पेशेंट का कंप्लीटली काम खत्म हो चुका है, पेशेंट का एनवायरमेंट आप छोड़ के दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हो, तो आप पेट हैंड वॉश करना है. याद रखना इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ये है, कभी कभी क्वेश्चंस में आता है ऐसे, इसको ना सारे स्टेप्स पर से उल्टा पुल्टा कर देता. आपको कैसे पता चलेगा, देखो, बी फॉलोड बाय ए, ठीक है, बी फॉलोड बाय ए. कैसे, मतलब 2 बिफोर के बाद 3 आफ्टर आते हैं, ठीक है. देखो इधर, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एनी क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, 2 बिफोर है. उसके बाद थर्ड क्या है, आफ्टर पेशेंट बॉडी एक्सपोजर, आफ्टर पेशेंट बॉडी एक्सपोजर, उसके बाद आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, दूसरा ए, और तीसरा ए है आफ्टर पेशेंट्स टचिंग द पेशेंट्स एनवायरमेंट, ठीक है. बी फॉलोड बाय A. दिस इज द निमोनिक हाउ यू कैन रिमेंबर, ठीक है. दिस आर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, जब आप हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन मेंटेन कर सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नॉर्सेट एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी कभी अल्टरेट कर लेते हैं, मैच तो फॉलोइंग करके आता है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा आएगा, तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है. So these are the things which you need to remember, okay. And one thing I would like to say कि the Eternal Nursing Education is launching a Thala test series, okay. तो ये आपका contact number है, ठीक है. You can contact on this number, okay, for your Thala test series, okay. एज यू नो इट इज़ ऑलवेज थाला फॉर ए रीज़न. अभी IPL आने वाला है, ठीक है, उससे पहले ग्रो द थाला इन यू, ओके, बी द थाला इन यू, ओके. ग्रैब दिस ऑफर्स अवेलेबल ऑन ENE app only at just ₹77, okay. So do contact us, do join the test series, give your best, okay. All the best, thank you all and have a good day.